आज सीबीआई दफ्तर के बाहर कुछ सीबीआई को लेकर अपमानजनक पोस्टर लगे हुए हैं और उनकी भारतीय जनता पार्टी साथ में मोदी जी के बिहाफ पर पूरी तरीके से भर्त्सना करती है, खंडन करती है। और उसमें हम बताना चाहते हैं कि इस तरीके के शब्दों का और पोस्टर से भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है और हम अपने आप को उससे पूरी तरीके से डिसोसिएट करते हैं। There have been certain posters which are in very poor taste. BJP condemns all such actions and disassociates itself completely from such acts. Both on behalf of the BJP and Mr. Modi, we condemn all such acts. We need to rework our strategies. Meenakshi, what about the fact that Ishrat Jahan case, the charge sheet is likely to be filed in the next 24 hours or 48 hours maximum? Now we're also hearing that P.P. Pandey's plea has been dismissed and he will also probably be named in the charge sheet. Do you feel that CBI and as well as the government is concerned, as you always claim that there is a misuse of CBI from the government and somewhere or the other target is always Narendra Modi? Absolutely. This has been our line because this is all a political conspiracy to tarnish the image of a person to whom a lot of people are hoping a change in the governance system, the manner in which government in this country has been functioning, and under such conspiracy only these acts are initiated. It's a political conspiracy for the simple reason this particular encounter happened in 2004, we are in 2013, and 2011 onwards the government has chosen to disassociate and change and alter its own affidavit. The affidavit which was filed by the then Home Ministry and Mr. Shivraj Patil was then Home Minister, and that affidavit is sought to be altered in this case, as we have seen in the case of coal scam also. Repeatedly such things are brought to the notice that even on issues of terrorism, they have attempted to blow the cover of IB. In the police hierarchy, the IB and RAW stand above CBI. And who is CBI to cross-examine or interrogate a director or somebody working for the CBI, because these are the agencies which work for the security of the nation, and security cover is a very, very important part of their functioning. Similarly, there was a case, if all of us can refresh our memory, of 2006 Malegaon. We have seen even those cases have been used for political purposes. There was first a charge sheet by the ATS and found certain people guilty. Similarly, another charge sheet was filed, which was filed by the CBI in those cases, and thereafter a third charge sheet was sought to be filed by the NIA, and which was completely different to what was filed by both the ATS and the CBI. Is NIA going to file case or charge sheet against those officers also from the CBI? That is my question. And repeatedly we have seen that these bodies are misused. There are cases of human right violation against the NIA chief, then chief, and those cases were filed in the NHRC, and this gentleman has been given the assignment of the member of the NHRC itself. This is another example by which we can say that the central agencies are misused for political purposes. The manner in which NIA chief was given a post-retirement benefit under the scheme is only thus an example, and NIA has absolutely no foot soldiers, no wherewithal as to how NIA investigation was better than even the CBI and the ATS investigation.
मैम चिदम्बरम ने मोदी पर ये आरोप लगाया है कि अलगाववादी राजनीति बीजेपी कर रही है और मोदी के खास तौर पर आर्टिकल 370 पर भी उन्होंने ये जो चिदम्बरम जी हैं या तमाम नेता हैं कांग्रेस के, मोदी फोबिया से ग्रसित हैं। इनका साइको एनालिसिस होने की आवश्यकता है और जांचने की आवश्यकता है किन किन कारणों से लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्होंने देश को लगातार दिया है, शायद उसी के रहते जो जनता ने आज देखना और परखना शुरू कर दिया है, इस तरीके की भाषा और शैली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनता अब उसको भी भली भांति समझती है। ये विषय मैल गवर्नेंस का है, ये विषय देश की एकाग्रता का है, ये देश को सही दिशा में ले जाने का विषय है। और जो इस तरीके के पर्सनल अटैक करते हैं किसी शख्सियत पर, कोई भी नेता हो, उससे साफ जाहिर होता है कि देश में आज जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो शतक के हिसाब से ये शतक पे शतक लगाने वाली कांग्रेस पार्टी है और अभी भी इनके रन रेट ख़त्म नहीं हुए हैं। मीनाक्षी जी, 4 जुलाई को जो बीजेपी पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक होने वाली है, उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग है उसका एजेंडा क्या है? वो जो होगा आपको उसमें एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। Meenakshi, Nitish has now just about some time ago has said that BJP is now becoming desperate. They want to be news all the time. I'm not any Rambo, obviously hinting at Narendra Modi that I'll go to Uttarakhand to rescue Biharis from there. Again, we go back to the question of lack of governance, lack of initiative. People who have failed, who do not have the initiative, who have failed in several administrative areas, can go back to the usage of such derogatory words as Rambos, etc. My response to that is, I think it's 1,000 times better to be a Rambo than a Dumbo or a Scambo. वो कहाँ रहने के लिए ये सब कह रहे हैं? जब ये विषय आया और उत्तराखंड में अगर बिहार के कुछ लोग फंसे थे, तो मैं केवल और केवल ये जानना चाहूँगी उस बचाव कार्य में जहाँ पर प्रशासनिक फेलियर हुई उत्तराखंड सरकार की, केंद्र सरकार की, उसके विषय में अगर कोई बयान किसी एक राज्य से नहीं आया तो वो उस राज्य की जनता को समझना है कि उनका नेता कैसा हो। देखिए, जिसको वो तमाशा कहते हैं, लोग उसको सुशासन मानते हैं और इसी विषय में मैं कहना चाहूँगी कि कहीं बेहतर है रैम्बो होना सिवाय इसके कि डम्बो या स्कैम्बो होने से। अजय माकन ने अभी कहा है कि उत्तराखंड के घटना पर राजनीति नहीं होना चाहिए और सभी पार्टियों को रिहैबिलिटेशन पर फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 15 दिन बाद अजय माकन जी को इस बात की याद आई, क्योंकि 15 दिन पहले उनको यही याद दिलाने के लिए पहले सुषमा जी ने ट्वीट करके उनको बताया था और गृह मंत्री से मिलकर बताया था कि ये आपदा ऐसी नहीं है जैसा कि कहा जा रहा था कि 54 लोग मारे गए, 72 लोग मारे गए, बल्कि हज़ारों के हिसाब से लोग मरे हैं और जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय को नहीं थी तब तक, और उस पर कोई कार्य भी नहीं हुआ था। 18 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद ये बात सामने रखी थी कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। सिर्फ किसी राज्य या किसी सरकार नहीं, बल्कि देश के जितने संसाधन हैं उनको जुटाया जाए उत्तराखंड से इस त्रासदी से बाहर निकालने के लिए, और सब कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर इस त्रासदी से लोगों को निकालें और जो भी काम हो सकता है वो काम एकजुट होकर किया जाए। लेकिन उन विषयों में लगातार जिस तरीके के शब्द चिदम्बरम जी ने इस्तेमाल किए, डिवाइसिव राजनीति, तो डिवाइसिव राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी जो कि ऐसे प्रचंड आपदा के समय पर भी अपने पोस्टर्स छपवा सकती है, बड़े बड़े अखबारों में एडवर्टिजमेंट दे सकती है, वेबसाइट के ऊपर लिस्ट छाप सकती है और
ऐसी रसद सामग्री की फ्लैग ऑफ कर सकती है, उससे कोई बेहतर उम्मीद करना शायद मुश्किल होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि आज उन्हीं के अपने पूर्व मंत्री ने इस तरीके का बयान दिया। देखना ये है कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर बाबा रामदेव जैसे लोग, जो कि शिविर के माध्यम से लोगों तक सामग्री पहुंचा रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, तो ये वही यूनिफाइंग फोर्स हैं इस देश के जिन्होंने ऐसे शिविरों को बंद करवाया था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जो वहाँ पर मदद करना चाहते थे, जो कि अन्य दलों के लोग थे, उनको वहाँ पहुँचने से रोका था। ये कहकर रोका था कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही हैं। लेकिन जब इन्हीं के सर्वश्रेष्ठ नेता छुट्टी मनाकर वापस आकर वहाँ जाना चाहते हैं तो उनको लेकर कानून और नियम का उल्लंघन होता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको बदला जाता है।